السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے میں آپ کا میزبان خالی بٹی آپ کی خدمت میں حاضر آج موجود ہے راولپنڈی کی عوام کے ساتھ۔ عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں پٹرول کی قیمتوں سے تنگ آ چکی ہے۔ عوام کا کیا کہنا ہے، عوام سے پوچھیں گے کہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس سے کیا عام آدمی بھی کیا اثر پڑا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر بتائیں، حالیہ جو مہنگائی ہوئی ہے، جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے یا پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جی، غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے، دکاندار آدمی کا خرچہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، لیکن یہ جو دکانوں پہ سیل مین ہیں یہ بیچارے خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک بیٹھک ہے، 10,000 روپیہ اس کا کرایہ ہے، 8,000 روپیہ بجلی کا بل ان کا آ رہا ہے، 2,000 گیس کا بل آ رہا ہے۔ وہ کھائیں گے کیا؟ اسکول بچوں کو کیا بھیجیں گے؟ نچوڑیں گے کیا؟ مرنے گیا غریب عوام۔ تو کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ عام جو سیلز مین ہے 15, 16, 17,000 یا 20,000 تنخواہ لینے والا 15,000 ان کے بل آ رہے ہیں، خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو IMF کے جو معاہدے ہیں وہ تو مزید مہنگائی بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ بس پھر اللہ پاک پاکستان پہ رحم کرے۔ تو جو تاجر برادری ہے، کیونکہ آپ بھی تاجر حضرات سے شامل ہے، ان کے اوپر کیا احتجاج میں شامل ہو رہی ہے اور وہ اپنی آواز وقت کے حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں کہ برائے مہربانی اس مہنگائی کو کنٹرول کریں، نہیں تو عوام خودکشیوں پہ مجبور ہے۔ جی سر آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو حالات اس وقت جا رہے ہیں اور جس طرح مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی ریٹ بڑھ رہے ہیں، بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، تو عام آدمی کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عام آدمی بہت سخت پریشان ہے اور عوام پریشان ہے اور حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ پیٹرول کا یہاں پہ قیمت بڑھا رہے ہیں، لیکن جو ان کی جو ادارے ہیں یا ان کے جو آفس والے لوگ ہیں ان کے لیے مفت پیٹرول ہے، بجلی ان کے لیے مفت ہے، اور اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی پر پڑ رہا ہے۔ تو اس پر حکمرانوں کو خیال کرنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اگر IMF کی مانتے جائیں گے اور یہ مہنگائی بڑھاتے جائیں گے تو عام آدمی کا جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہاں پہ کچھ اور بھی دوست موجود ہیں، لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پنکھے والے کا بل 10,000 سے کم نہیں آ رہا ہے، تو جو 15,000 کماتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس وقت جہاں بھی جس سے بھی پوچھا ہے جی 15-20 ہزار سے کم بل اس کا ہے نہیں ہے، اور ایک بندے کی اگر آمدنی 10-15 ہزار ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ وہ تو خودکشی ہی کرے گا، وہ تو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں جب وہ بل۔ اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آپ انڈسٹری والے اور ان لوگوں کے کروڑوں میں بل ہوتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ ایک مہینے کے بجلی کا بل نہیں ادا کرتا تو اس کا میٹر کاٹنے آ جاتے ہیں، تو یہ اور زبردستی وصولیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اور بھی چیز کی جا رہی ہے بلوں کے ساتھ، جو ریڈنگ لیٹ کی جا رہی ہے کہ یونٹیں زیادہ بنے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی انہوں نے نئی ٹیکنیک نکالی ہے کہ جو یہ ریڈنگ کر کے اور وہ لوگوں کو لیٹ یونٹ کر کے پھر اس میں وہ پتہ لگتا ہے اس مہینے میں تھوڑا سا کم آیا، اگلے مہینے میں وہ ڈبل بل آ گیا جس کی وجہ سے پھر لوگ وہ پریشان ہیں بہت زیادہ۔ جی سر آپ بتائیں، آپ نے بل اٹھایا ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ 10,000 میرا بل آیا ہے اور ہم 3-4 بندے ہیں گھر کے، چھوٹا سا گھر ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم یہ 10,000 بل کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم دال روٹی کھانے سے بہت مجبور ہو چکے ہیں، عوام کی جو ہے نا وہ کمر ٹوٹ چکی ہے۔ کتنی یونٹیں آپ کی، کتنی یونٹیں ہیں؟ یہ تقریباً 150 کے قریب 200 یونٹ ہے۔ 200 یونٹ کا 10,000 بل آیا؟ جی 10,000 بل آیا۔ کتنے بندے ہیں گھر کے، کیا کیا استعمال؟ 4 بندے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 میاں بیوی۔ جی AC وغیرہ کچھ بھی نہیں یوز کر رہے، صرف پنکھے ہیں 2 بس۔ پنکھوں کا بل اتنا آ گیا؟ جی آ گئے۔ تو یہ کیسے ادا کریں گے؟ سر بس یہ کسی رشتہ دار سے، دوست سے ہر دفعہ ایسے ہی ادھار پکڑ کے 200 روپے کلو پہ آٹا پہنچ گیا ہے، 150 روپے کلو چینی ہو گئی ہے، تو ان عوام کے لیے رات کو عدالتیں نہیں لگتی۔ جب حکومت کوئی چینج کرنی ہوتی ہے تو رات کو 12 بجے بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، کوئی بھی ہو۔ تو کیا سمجھتے ہیں اگر یہ مزید بلوں میں اضافہ ہوا تو لوگ کیا کریں گے؟ کیا سر، لوگ کدھر بل دیں گے؟ لوگ تو بجلی کٹوا دیں گے، بل دے ہی نہیں سکتے۔ ہم تو 10,000 بھی مطلب ہے کہ وہ کیسے دیں گے؟ تو کام کیا کرتے ہیں؟ میں کام رکشا چلاتا ہوں۔ ایک رکشا چلانے والے کا بل 10,000؟ جی 10,000 بل آگے، چھوٹا سا گھر ہے، 2 پنکھے ہیں بس، 4 بندے ہیں۔ جی ناظرین، یہ رکشا ڈرائیور ہیں، ان کا بل 10,000 آیا ہے، اور ٹوٹل گھر کے 3 بندے ہیں، 10,000 بل، 200 یونٹ کا 10,000 بل ہے۔ یہ بل اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہم سب بھائی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جج دیکھ لیں، آرمی والے دیکھ لیں، بیوروکریٹ دیکھ لیں، تمام کی تنخواہیں دیکھ لیں، سب کی تنخواہیں ایکول ایک دفعہ کر کے دیکھیں، انہیں پتہ چلے کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ یہ بجلی کے بل کی بات کرتے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، پتی نہیں، آئے دن رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں
इस दफ़ा पेट्रोल इन्होंने सुबह 10 बजे महंगा किया है। हम गरीब लोग टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर जब पेट्रोल लेने बोतल में जाते हैं, कहते हैं जी आपको नहीं मिल रहा, और हमसे सवारी 500 रुपया लेती है, उसका पेट्रोल डलवाते हैं, आगे कहीं ख़त्म हो जाए, हम चल चल के गाड़ी को धक्का लगा लगा के पंप पे लेके जाते हैं। मेरा सवाल ये है, हम 50-60 हज़ार में गुजारा कर सकते हैं, सबकी तनख्वाह एक दफ़ा इक्वल करें, कुर्बानी दें, अब बड़े कुर्बानी दें। हमने बहुत कुर्बानी दी, हम यही कर सकते हैं, गुर्दे बेचें, आप बेच के कर्जा उतारें यार, जो बाकी रह जाए वो तो सुख का सांस लेना। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, कभी कभी ऐसा होता है बेटी कहती है बाबा पैसे जेब में टका नहीं होता, हम कहाँ जाएं। तो ये बताएं कि बिल जो है कितना आया आपका? बिल का जहाँ तक तलक है भाई, बात इस तरह है कि एक पंखा, एक टेलीविज़न, एक फ्रिज, 8,000, 9,000, 10,000, इससे कम बिल नहीं है। मेरी महीने की आमदन है 60,000, अखराजात हैं 1 लाख। अब बताएं, मैं अगर चोर बनूं, ये सब भाई सुन रहे हैं, मैं अगर चोर बनूं तो वक्त हाकिम इसका मुजरिम है, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैं माँ के पेट से चोर नहीं बन के आया, मुझे इन हुक्मरानों ने, इस महंगाई ने चोर अगर बनाना है तो बनाना है। मैं कब तक सब्र करूँगा, कब तक अपने बच्चों को 3 टाइम की बजाय 2 टाइम पे खिलाऊँगा। यार खुदा का खौफ करें, अब बस काट दें। गरीब ने बहुत कुर्बानी दे दी, हमारी हड्डियों में खून नहीं है, हमारी पसलियाँ निकल आई हैं। बिल दे दे के, बिल दे के महंगाई, सुबह उठते हैं सोच होती है शाम को खाना कैसे पूरा करेंगे। आप अभी मेरे साथ चलें, आज दिन को 3 रोटियां तंदूर से ला के मेरे बच्चों ने खाई है, ना आटा है, ना चीनी है, ना पत्ती है। अब बताएं, मैं सुबह का निकला हूँ, मेरी जेब में 800 रुपया है, अभी रात 12 बजे घर जाऊँगा, बहुत मुश्किल ये चीज़ें पूरी होंगी। बिल कहाँ से देंगे, किराए का मकान है, क्या क्या करें हम। महंगाई, टायर हमारे गाड़ी के, रिक्शे के टायर का, हर चीज़ देख लें। सवारी से कहते हैं, सवारी देखती है मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि इस बेचारे का फ्यूल कितना लगेगा। अखराजात कितने हैं? ठीक है, आप क्या कहते हैं सर? सर महंगाई के हवाले से आपको बताएं कि जो नौजवान कौम है, देखें उनकी शादियाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। महंगाई इतनी है कि जो नौजवान अवाम है जो वो जलील हो रही है, ठीक है, ब्याही की तरफ जा रही है, ठीक है। जब एक शादीशुदा बंदा जिसकी नई नई शादी हुई है, अब देखिए वो 12 घंटे ड्यूटी करके भी फिर भी वो बाइकियाँ चलाता है, वो बच्चों को, बीवी को टाइम नहीं दे सकता। क्यों कि महंगाई है, उसने रात को खाना खाना है, बीवी को, बच्चों को खाना खिलाना है, उनके कपड़े, सारा कुछ करना है। एक बंदा जो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा कर रात को आता है तो आगे से खर्चे 1500 के। अब खुद अंदाजा लगाएं कि 500 रुपये हम कहाँ से ला के दें, ठीक है। अवाम का बुरा हाल है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलता कि यार अवाम कैसे सो रही है, क्या जाग रही है, रोडों पे है, ठीक है। हम लोग अवाम जो है वो वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी हालत देखें, फुटपाथ पे बैठे लोग बाइकें चला रहे हैं, ना माँ बाप को टाइम दे रहे हैं, ना बहन भाइयों को, ना बीवी बच्चों को। तो हालात इस किस्म ये है कि अब खुदकुशी करने की तरफ लोग जन जा रहे हैं, ना बेटों की शादियाँ हो रही हैं, ना बहनों को बंदा जेज दे सकता। बिल कितना आया? 10,500 मेरा बिल है। अब देखें 5 बंदे हम घर में, ठीक है। एस कुछ भी नहीं जी, एक टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सॉरी मोटर है, ठीक है, 2 पंखे हैं। अब खुद नजर लाएं कि हम क्या क्या कर सकें। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है जी। किराएदार जो मकान है वो तो जो है ना वो बाहर निकले में तम्बू के नीचे गुजारा करने के, यार किराया किधर से देंगे। बिल इतने आ रहे हैं कि हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर हम आवाम एहतजाज नहीं करेगी, किसी को कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, तो जो है ना वो दिन ब दिन काम बढ़ता ही जा रहा है महंगाई का, तो फिर खुदकुशी की तरफ जो है ना रुझान ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है कि आए दिन महंगाई हो रही है, हर चीज़ जो 10 रुपए की मिलती थी और दूसरे दिन तीसरे दिन बाजार में जाए तो 100 रुपए की है, ठीक है। आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ सर जी, अगर महंगाई थोड़ी कम कर दें, बड़े लोगों का ये बिजली जो फ्री की दे रहे हैं, वापटा को, इनको सबको बिजली फ्री है, बड़े बड़े अफसरों की, लेकिन हमारे से 10,000 15,000 बिल होता है, हमारा 2 पंखे होते हैं। ये पर यही कह रहा हूँ, इतना ही कहूँगा बस। आपका हिसाब बिल कितना आया? मेरा बिल 9,000 रुपये आया सर। कितने बंदे हैं? हम लोग घर में 2 बेटियाँ हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, तो 2 पंखे चलते हैं हमारे घर, बिल 10,000 रुपये आया है। तो काम क्या करते हैं? मैं काम एयरपोर्ट पर 24,000 रुपये की नौकरी करता हूँ। 24,000 में गुजारा हो जाता? बस क्या गुजारा होता है, हम रो के ही गुजारा करते हैं। घर अपना है मेरा। हाँ बस यही से किराया होता है। आप आगे हैं जी, आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो वैसे बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ। मैं तो पाकिस्तानी है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। लेकिन यहाँ अगर किसी सूरत जो भी देखा जाए, या महंगाई के बारे में देखा जाए, या और कोई हालात देखा जाए, कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है, कोई भी चीज़, चाहे वो महंगाई हो या और कोई सर्विस। जैसे अभी रोडों की हालत है, मैं सुबह आ रहा था,
और इतनी बुरी हालत हो रही है। सबसे मेन कसूर गरीब आवाम का है। आवाम का क्यों कसूर है? आवाम सिर्फ नारे लगाने के लिए, बस बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ नारे लगाने के लिए। आवाम को चाहिए कि उस चीज़ का इंतखाब किया जाए, उस नुमाइंदा को मुंतखब किया जाए जो इनके लिए बेहतरी हो। मैं इतना ही कहूँगा। ये आए रोज बिजली महंगी कर देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, आटा चीनी क्यों हर चीज़ उन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर किया हुआ है। एक गरीब का घर, एक कमरे का घर मेरा घर है, उसमें मैंने सोलर लगाया हुआ है, उसके बावजूद मेरा 9,000 रुपये बिल आ गया, जिसमें मेरे सिर्फ 2 बच्चे और मेरी बेगम है। आप सोलर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी, मैं दिन को जो है वो मेरा कूलर चलता है, सोलर पे चलता है, बिजली में बंद रखता हूँ। जी, बिजली में बंद रखता हूँ। उसके अलावा भी 9,000 रुपये मेरा बिल आ गया। अब ये मुझे ये लोग बताएं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हम लोगों का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान उन लोगों का है जिनको बिजली मुफ्त मिलती है। हम गरीब सिर्फ मार खाने के लिए, मरने के लिए, खुदकशियाँ करने के लिए हम पैदा हुए हैं। हम 1947 में पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं किया था कि इन्होंने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान हासिल किया था। आज ये चंद लोगों का टोला हुकूमत में बैठ के गरीब लोगों को इन्होंने ज़मीन के ऊपर लगा दिया है, खुदकशियाँ करने पे मजबूर कर दिए हैं। खुदारा और गरीब आवाम को देखें, अगर गरीब आवाम की तकलीफ़ों को देखें कि कौन कैसे जी रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते थे कि अगर एक जानवर भी भूखा सो गया तो उसका रोज़े क़यामत वाले दिन मुझे पूछोगी। आज इंसान जानवरों की तरह मर रहे हैं। इन हुक्मरानों को इन शर्म नहीं है, इनके अपने प्रोटोकॉल पूरे होते हैं, अपने इनको यशियाँ पूरी होती हैं, इनके बच्चों की तालीम फ्री है, हर चीज़ इलाज हॉस्पिटल का फ्री है। एक गरीब आदमी मजदूर जो है ना वो मर रहा है, हॉस्पिटल के आगे मर रहा है, उनको हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पूछने वाला नहीं है। ये भी इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं, टेस्ट इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं। तो हुकूमत तो कहती है अवामी हुकूमत है। कोई अवामी हुकूमत नहीं, ये अवामी हुकूमत का सिर्फ नारा लगाते हैं, ये जमहूरी हुकूमत का सिर्फ नारा लगाते हैं। ये सिर्फ गरीब का वोट लेके सिर्फ ऊपर इन्होंने सीट पे बैठना होता है, नारा लगाते हैं कि हम गरीब के लिए आए हैं, लेकिन जब ऊपर जाते हैं ना वो कहते हैं हमने नारा लगाया था कि गरीब को ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो वो गरीब ख़त्म हो रहा है, खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ ऐसे मार रहे हैं, कुछ बच्चों को मार रहे हैं। खुदारा इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा सा हुक्मरान दे जो इस मुल्क के मुतालिक सोचे। ये मुल्क तो डिफाल्टर के बिल्कुल एंड लगा हुआ है। ये तो यहाँ तो सीधा सीधा अमेरिका के वाले कर दें ये लोग। इधर कभी कोई रक्शे वाला मर रहा है, कभी कोई मजदूर मर रहा है, कभी कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। समझिए, बस मेरी गुजारिश है हुकूमत है, अगर इनसे नहीं चलती, वैसे भी इनका बिल्कुल एंड लग गया है। 12 तारीख से पहले इन्होंने जो है ना वो निगरान हुकूमत के वाले इन्होंने कर देनी है। हम सब आवाम मुत्तहद जब तक नहीं होंगे इन चोरों से हमारी जान नहीं छूटेगी। ठीक है जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मज़ीद अवाम के तासरात के बारे में पूछेंगे। बैक नाजरीन, जैसा कि बात हो रही थी बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, अवाम हमारे साथ मौजूद है। रावलपिंडी की अवाम है, क्या कहती है महंगाई के हवाले से? इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। जी आप बताएं महंगाई का क्या हाल जा रहा है? जी सर जी, इतने लोगों के माली हालात कोरोना में नहीं ख़राब हुए जितने इन्होंने 6 माह के अंदर अंदर ख़राब कर दिए। ठीक है कि नहीं? हम इधर शोकेस लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, ठीक है कि दिहाड़ीदार बंदे हैं, कभी 17,000 रुपया बिल, कभी 25,000 रुपया बिल, ठीक है कि नहीं? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, हर चीज़ मकान किराए पे है। लोगों के माली हालात इतने कोरोना में नहीं ख़राब हुए जितने ये 6 महीनों में ख़राब हो गए। ठीक है, हम लोग इमरान खान को गलत कहते थे मगर वो बंदा ठीक है। उसने सिर्फ ये 2 बातें बताई। उसने कहा जब तक ये जम्मू कश्मीर या अफगानिस्तान ये मुल्क नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान की फ़ौज ये खाती रहेगी इस मुल्क को। और वाहिद बंदा है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है, आज दिन तक किसी बंदे ने फ़ौज पे कोई बात नहीं की। वाहिद इमरान खान। अभी महंगाई के ऊपर बात? जी महंगाई के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। वाहिद इमरान खान है जिसने ये बात की है, और हमारे यंग जितने भी हैं उनका ज़हन खोला हुआ है। जी बिलों के वाले से बिलों का क्या है? बिल सर जी 25,000 रुपया मेरा बिल आया। ठीक है कि नहीं? मैंने किस्त करके उधार किया। जी कितने बच्चे? कितने? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर महंगाई ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? सर जी ये तो गरीब पिस गया है महंगाई की वजह से। हर बंदा टेंशन में, हर बंदा परेशानी में आप? जी 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 सर आप बताएं, आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह महंगाई की बात करते हैं आप, ये 80 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहे हैं साबिक होने के बावजूद। सिर्फ आवाम को वो नारा लगाने के लिए रखा है मुर्दाबाद। अब वोटर की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने वो लोग पाल कर रखे हुए हैं जो ये काम करते हैं। मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ती हैं,
जो लोग ये इस जवान ने जो बात की कि हम लेबर हैं, लेबर का मतलब है कोई केले बेचता है, कोई आम मजदूरी दिहाड़ीदार है या रेड़े चलाता है या कुछ भी, उसकी 500, 600, 800 रुपया दिहाड़ी है, 20 से 25, 30 हज़ार रुपया महीना बिल आते हैं। टैक्स पे टैक्स, ये बात दुरुस्त कही है एक जवान ने यहाँ, मैं वहाँ सुन रहा था कि मुंशी साहब 4 साल मफरूर रहा। इस आवाम में वो शोर भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये क्या करके आज करके आया है। उसको 4 साल के TADA भी मिला, पेमेंट भी मिली, और आज फिर कहता है कि मैं जिंदाबाद। यहाँ आवाम की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ रखा है टिशू। मैं कश्मीर रियासत से ताल्लुक़ है, हमें बॉर्डर पे भी रखा है इसीलिए कि डिफेंस के लिए हमें कोई न मारे, इनको मार दें, मारने दो, ये स्टेट सी बात है। तो क्या आवाम वैसे ही नारे लगाते, क्या समझे महंगाई आगे बढ़ी तो क्या करेगी? क्या करेगी आवाम? कुछ नहीं कर सकती। आज क्या किया इन्होंने? ये 4 माह से एक आदमी इन्होंने ख़ात्मे आला पंजाब लगाने के बावजूद, उसका टाइम पूरा हुआ, उसके बावजूद वो मुसल्लत है। यहाँ कानून नाम की जो बोलता है उसको या गोली मार देते हैं या उसको उठा कर ले जाते हैं, जो बोलता है वो शूट एंड साइड। आप तय सर, आप क्या करें महंगाई के हवाले से? हाँ, ये ना महंगाई का जो असर है वो गरीब पे पड़ता है। सागदार जो वज़ीर ख़जाना है वो AC के कमरे में बैठकर 70-80 कैमरों के आगे बैठकर वो कहता है जी डीजल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया है, अच्छा चीनी इतना महंगा हो गया, लेकिन गरीब पे बोझ नहीं पड़ेगा। ये बोझ किस पे पड़ेगा? शरीफ फैमिली पे पड़ेगा, जरदारी फैमिली पे पड़ेगा, जहांगीर तरीन पे पड़ेगा, या परवेज़ खटक पे पड़ेगा? ये हम पे पड़ता है। इसीलिए रोज़ाना यहाँ डकैतियाँ होती हैं, यहाँ रोज़ाना जो है ना लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से पैसे छीन लिए। हम ये मंडी मोड़ पे होते हैं, रात को भी एक आदमी से तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये लेकर चले गए पिस्टल रख कर। तो ये वो तो आराम से बैठे हैं, उनके पीछे तो 100 पुलिस वाले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको मिलता है, हमें तो कुछ नहीं मिलता है। हम तो दिन को भी आते हैं तो हमें हर तरफ से खौफ होता है कि कोई इधर से आ जाए, हमारे जेब में जो 2-4 हज़ार रुपये वो ना लेके जाए। तो खुदा के लिए जो है ना इनको चाहिए कि, मैं तो कहता हूँ ये अवाम अगर इमरान खान के लिए निकल सकती है, मरियम नवाज के लिए निकल सकती है, तो अपनी ज़ात के लिए क्यों नहीं निकल सकती है? और बेहतरीन इलाज इसका ये ना, अभी मिसाल के ये ना, ये मल्ला है, ये मल्ले वाले इस रोड को बंद कर दे, यहाँ किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस चले जाओ या कमेटी चौक चले जाओ या लाहौर चले जाओ, किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर मल्ले वाले अपने घर के साथ ही जो है ना रोड ब्लॉक कर दे। इससे क्या फ़ायदा होगा? अपने आप को तकलीफ में नहीं डालेंगे सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो वो ना, आप गाड़ियों पे बैठकर हम चले जाएंगे पार्लियामेंट हाउस, वहाँ एहतजाज करेंगे घंटा 2, फिर वापस से जाएंगे। इससे ये होगा ना कि ये 2 दिन 3 दिन जो है ना पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, तो इनको भी पता चलेगा। अभी आवाम बिल भी दे रही है, वो आटा भी ले रही है। कहने का मकसद वाहिद हाल एहतजाज है, और एहतजाज इस किस्म को होना चाहिए कि वो 1 घंटा 1 दिन का नहीं होना चाहिए। जब तक पेट्रोल 100 रुपये पे ना आ जाए, आटा पुराने रेट पे जो 2018 से पहले का था 600 रुपये तोड़ा, उस पर ना आ जाए, आवाम को उठना ही नहीं चाहिए ना किसी। जी आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने बात करने का मौका दिया। मैंने कल जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो मैंने नेट पे फेसबुक पे बहुत पोस्टें लगवाई हैं, चूँकि मैं ख़ुद मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लुक़ है और राजा बाज़ार में मैं ताजर हूँ छोटा सा। तो हमारा ये है कि यकीन कर लें कि हम कारोबार जो कर रहे हैं इसके बावजूद हमारा निज़ाम नहीं के होने के बावजूद मुतफिक नहीं है महंगाई? नहीं मुतफिक हैं जी। और मैं इनकी बात से, वो भाई ने बात की है, बिल्कुल ये 100% इत्फाक करता हूँ कि अवाम को इस सिलसिले में निकलना चाहिए और अपने हकूक़ के लिए इंशाअल्लाह बिल्कुल निकलेंगे जी। बिल्कुल अवाम के साथ हैं, चूँकि अवाम इस वक्त सख्त मुश्किल में है। और मैंने देखा है कि लोगों के जो बिजली के बिल आए वो लोग दर बदर मारे फिर रहे हैं, किसी से उधार मांग रहे हैं, कहीं कोई किस्तों के लिए जा रहा है। तो ये बिल्कुल मैं इस पे 100% यही कहूँगा कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में वो आवाम के लिए कुछ सोचे और अपनी मराद को कम करें। तो ये खुदारा ये मैं अपील करता हूँ हुकूमत से कि इस वक्त आवाम बहुत मुश्किल में है और इनके लिए कुछ किया जाए। जी सर, आप अपना तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ में अंजुमन ताजरान बाजवल कौमी रावलपिंडी इस्लामाबाद का सदर हूँ। मेरा नाम हाजी फजल रहमान है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दुख और अफसोस के साथ कि बाजवल के ऊपर जो पदकश था
मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और इसके साथ साथ जो हुकूमत वक़्त है जनरल पाकिस्तान से, कौन सी जमात से? मैं ANP का कारकुन हूँ। क्या समझते हैं अभी महंगाई जो बढ़ी है, जो एकदम बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके बारे में आपके क्या तासुरात? जी, इसके हल ये है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठ छोड़े, हमारा वज़ीर ख़जाना झूठ छोड़े, हमारा जो बड़े हैं वो झूठ छोड़े। कौम तो ऐसा है, अभी महंगाई इतना है कि कारोबार नहीं है। अभी देखो ये रास्ते देखो, ये मोटरसाइकिल देखो, ये गाड़ी देखो। अभी DCS साहब दफ्तर में है, कमिश्नर साहब दफ्तर में है, CPU साहब दफ्तर में है, SSP साहब दफ्तर में है। कोई पाकिस्तान के लिए खिदमत के लिए तैयार नहीं है। और हम इंशाल्लाह हम ताजिर हैं, हम तैयार हैं। लेकिन जैसे आप अजोड़ प्लाजा के सदर भी हैं और तर्जमानी भी करते हैं ताजरों की, बिजली के बिलों से जो आपके पास लेबर है काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या असरात पड़े? नहीं, बिजली का बिल भी है और महंगा नहीं, बिल्कुल लोग चोरी के लिए तैयार हैं। अभी जो चोरी रास्तों में जो चोरी होते हैं, या मोबाइल चोरी होते हैं या और चोरी होते हैं, काम नहीं है। और बीक वाले 100 जाते और 100 आते, सारे मर्द और बीक मांगने पे मजबूर है। बिल्कुल हुक्मरान है नहीं है, झूठ है, झूठ है मेरे हर तरफ। बिल्कुल हाल क्या बताते हैं इसका? हाल ये है कि बिल्कुल नाअहमियत की ज़रूरत है। हम जनरल पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि सब इकट्ठे होकर इस कौम के कि 1 महीने का तनख्वाह छोड़ो और बकाया फील करो, अपना पैसे भी डालो अपना अपना वस के मुताबिक। और ताजर और डॉक्टर और इंजीनियर सारे जो इदारे हैं अपने वस के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पैसा डालेगा इस मुल्क की खातर, इस इज़्ज़त की खातर, इस पाकिस्तान के खातर। और झूठ छोड़ेगा, झूठ न बोलो। आप क्या कहते हैं जी? महंगाई इतनी की बेअंदाज है ना कि बंदा सोच भी नहीं सकना। गरीब बंदा रोटी खाने तो मजबूर है। तुसाना कितना बिल आया है इसके? साडा बिल आया है 7,500 रुपया। क्या कितने बंदे हो? कि 3-4 बंदे हैं। 8-10 हज़ार तनख्वाह से क्या बनेगा? मुश्किल हो गया, मुश्किल बहुत। किस तरह हल की है जी? क्या हल कटोगे? हूँ हल असा क्या करना, हल फिर ये रैली निकालेंगे और के एहतजाज करोगे? एहतियात करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, टायर जला के। कोई महंगाई ने बारे ज ना कुछ 100% महंगाई कम होनी चाहिए। काम क्या करते हो? काम क्या मजदूरी करने और क्या करते? दिहाड़ी कितनी? 1000-1200 दिहाड़ी लगा। 1000-1200 गुजारा हो रहा है? वो मुश्किल से किराया आता, मुश्किल होता। किराए तो नहीं है कि जब किराए बढ़े तो गाड़ियाँ वाले यकदम ये घटे तो इस महीने में 3 दफ़ा किराया कम हुआ है। गाड़ियों वाले वही किराया ले रहे हैं। आप तय जी क्या कहते हैं बिजली के बिलों के बारे में? बिजली के बिल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बिल है 25,500 तकरीबन। कितने? तो हम बंदे हैं तकरीबन 6-7 बंदे हैं। तो आपको तो हिसाब लगाएं कि 6-7 बंदे हैं, वो अगर 25,500-26,000 का बिल वो महीने का आता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो गरीब बंदों के लिए जो है ना आप देखें कि बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो क्या इसका हल क्या बताते हैं? तो इसका हल यही है कि जो हुकूमत को है वो सोचना चाहिए। ठीक है, रिलीफ देनी चाहिए गरीब बंदों के बारे में। ठीक है, पेट्रोल के हवाले से क्या कहते हैं? पेट्रोल की भी ये 40-50 रुपये बढ़ाते हैं और वापस कम करते हैं, 8-9 रुपये कम करते हैं। ठीक है, तो जो करंट हमारी गवर्नमेंट है उससे हमारी यही है कि वो पेट्रोल की कीमतों में भी आसानी करें। ठीक है, हमारे लिए भी और बाकी आवाम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। ठीक है, बेहतर हो। ठीक है, आप क्या कहते हैं बिलों के हवाले से? बिल जी गरीब आदमी हूँ मैं। ठीक है जी, इतना बिल आता है। आप मेरे बिल तक 19,720 रुपये मेरा बिल आया। आपका बिल आया जी। कितने बंदे हैं घर के? घर के हमारे तकरीबन जोड़ से है ना जी 4 अफराद हैं। 4 अफराद का यकीन करो मैं इतना परेशान हूँ इससे ज़्यादा। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ जी, मामूली सा ड्राइवर हूँ। उसमें घर का खर्चा भी पूरा। तनख्वाह कितनी है? मेरी 18,000 रुपये मेरी तनख्वाह। 19,000 बिल आ गया? 19,000 बिल आ गया। बच्चों को क्या करूँ मैं? बच्चे क्या? घर अपना है किराए पे? नहीं, घर तो मेरा अपना है। लेकिन 18,000 में से बिल दे दिया? बिल दे दिया, पीछे कुछ भी नहीं है। बच्चा कुछ भी नहीं है। यकीन करो इतना परेशान हूँ कैसे ज़्यादा। कैसे फिर गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे गुजारा करता हूँ? बस ऐसे ही भूख हड़ताल करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? तो बच्चे क्या स्कूल जाते हैं? बच्चे कुछ स्कूल पढ़ते हैं, कुछ काम मजदूरी करते हैं। तब काम चल रहा है जब घर का नाम चल रहा है। इतना परेशान हूँ कैसे ज़्यादा। क्या हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुक्मरान आप करता हूँ, पेट्रोल है, सवारी पैसे नहीं भरती इतना। पेट्रोल महंगा है। ठीक है, अब सुबह का मैं ऐसे खड़ा हूँ, सवारी नहीं मिलेगी, कोई सवारी भी नहीं आई है। घर जाएंगे खाली हाथ?
नमाज पढ़ कर ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस हुक्मरानों को थोड़ा सा नीचा कर दो, तो हमारे हाल पर रहम कर दे, हम परेशान कर दे। यकीन करो इतना परेशान हो गया इससे ज़्यादा, इस महंगाई की वजह से बहुत परेशान हो। हर चीज़ पेट्रोल जिससे बढ़ते बढ़ेगा उसी टाइम हर चीज़ बढ़ जाएगी, उसी टाइम बढ़ जाती है। जो पुरानी चीज़ें रखी हुई दुकानदारों के पास, शाम को लेने जाए सुबह के जी पेट्रोल महंगा हो गया जी, क्या करें अब बताओ, हम क्या करें, हम मुश्किल हो गया। आप क्या कहते हैं? मुश्किल हो गया जी आजकल बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल इतना आते हैं कि बंदा के वस में नहीं है, बस में नहीं है। ये हमारा गैस का बिल है, देखो 9,000 गैस का बिल इतना आया? ये गैस का बिल है 8,950 रुपये गैस का बिल आया घर का। ये बिजली का बिल है, बिजली का बिल 14,000 रुपये आया। तो हम गरीब लोग हैं, हम किधर से भरेगा? लोग बहुत परेशान है। डॉलर किधर पहुंच गया, पेट्रोल देखो पेट्रोल कितना ऊपर चला गया। बेरोजगारी है, काम नहीं है, लोग बस वैसा बैठा है। बस हमारा इस हुकूमत से अपील है कि आप जान छोड़ाओ, हुकूमत छोड़ो, आप चले जाओ। वैसे भी हुकूमत 7-8 दिन के मेहमान है, क्या मैसेज देते हैं 7-8 दिन में आवाम के साथ क्या करे कि दोबारा वोटों के लिए आए? हुकूमत से हमारा अपील है कि आपके बस में ये काम नहीं है। आप लोग जो है ना महंगाई ख़त्म करने के लिए आया, आपने तो महंगाई ख़त्म नहीं किया, आपने तो बहुत बढ़ाया, ऊपर किया। गैस का बिल देखो, बिजली का बिल देखो, सारा चीज़ किधर चला गया, आसमान पे चला गया। रेट देखो सब चीज़ों का, गरीब लोग क्या करता है, गरीब का जीना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं काम ही नहीं है, क्या करें, बेरोजगार है, बिल नहीं मांगते, नहीं कोई देता, बोलता बस। बिल कितना है इस दफा? बिल हमारा क्या आएगा, बिल हम तो वो तेल बालते हैं, हमारे पास नहीं। हाँ बिल ये फिर भी महंगाई से तंग है आप? काम किए हो, क्या करें, 8 महीने हो गए काम नहीं है, होटल का मैं काम करता हूँ, है ही नहीं है, क्या करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मज़ीद आवाम से पूछेंगे ये महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि महंगाई के हवाले से बात हो रही है, मौजूदा बिजली के बिलों के ऊपर, पेट्रोल की जो कीमतें हैं, जो पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिरा है, उसके ऊपर आवाम जो है वो बिलबिला उठी है। हमारे साथ रावलपिंडी की आवाम मौजूद है, ये बता रही है कि महंगाई के होने की वजह से इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताएं, महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं? महंगाई के हवाले से तो सर ये वो हुकूमत है जिसने तकरीबन 3 से 4 धरने दिए हैं इमरान खान की हुकूमत के दौर में कि हम महंगाई दूर करेंगे। और शहबाज शरीफ टीवी पे बैठ के कहता था अगर पेट्रोल 100 रुपये कर ले हुकूमत तो हुकूमत किसी भी हुकूमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज पेट्रोल तकरीबन 300 के लगभग है। और पेट्रोल अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है और खाने पीने की चीज़ें ये जो सब गरीब लोग हैं, ठीक है, हर चीज़ महंगी हो, हर चीज़ महंगी नहीं, डबल ट्रिपल हो चुकी है, इससे ज़्यादा होगी। अब आवाम के पास तो कोई हल नहीं है। करें कितना बिल आया आपका? मेरा सर 2 कमरे का घर है, किराए पे 13,000 रुपये बिल आया। अब ऐसा काम क्या कुछ भी नहीं है, मैं ऑनलाइन काम कर, ऑनलाइन काम जी जी, उससे ये अखराजात पूरे हो जाते हैं? खर्चात कहाँ पूरे होते हैं सर, अब तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उधार लेना पड़ता है, हर बंदे को लेना पड़ता है। हमें नहीं, आप अपने ही पे सोच लें, जिस सैलरी में आप बहुत खुशी से गुजारा चला रहे थे आज चला रहे हैं, नहीं चल सकता। देखें आपका प्रोफेशनल जॉब है, आपका नहीं चलता तो गरीब 1,500 वाले का कैसे चलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि 250 रुपये किलो आटा और 226 इन्होंने लग्जरियस गाड़ियाँ बुक की, जिनकी पेमेंट भी इन्होंने कर दी टोयोटा कंपनी को, हैं ये इस कौम को नहीं देख रहे हैं। गरीब के लिए आटा जरूरी है या 2,000 गाड़ियाँ जरूरी हैं जो अरबों रुपए की हैं। अगर अवाम का किसी के दिल में तरस हो या अवाम का कुछ सोचे, 2,000 गाड़ियाँ करोड़ों रुपए वाली, ठीक है, टैक्स गरीब पे भी लगता है और अमीर पे भी बराबर लगता है, ठीक है भाई, गरीब अमीर पे टैक्स बराबर लगता है। गरीब के पैसे से 2,000 गाड़ियाँ आएंगी जो अरबों रुपए की हैं। और ये महंगाई कम करने आए थे इन्होंने, 100 रुपये वाला आटा 150 का कर, ये 100 नहीं 70-80 रुपए का था। अब तो 250 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 50 रुपए की रोटी मिल रही है। आज सुबह मैं एक आदमी से 100 रुपए उधार लेके तो मैंने नाश्ता किया, बस वो नाश्ता ही किया है और कुछ नहीं किया। समझते हैं इसमें क्या हालात हैं बिजली के बिलों के हवाले से बताएं। बिजली के बिलों ने तो दुहाई मचा दी,
अल्लाह रहम करे इस उम्मत पे। 50 रुपए यूनिट 40 रुपए यूनिट कर दिया। ये गरीब खातून है, ये बात कर रहा है जी, आप आगे आ जाएं। अस्पतालों का निज़ाम आप लोगों का सही नहीं है और वो किधर जाएंगे। अस्पताल में कुछ भी नहीं है, डॉक्टर भी मतलब सही नहीं है और जो है ना बाकी चीज़ें भी नहीं है, दवाई नहीं मिल रही। अस्पताल के वाले से कह रहे हैं? हाँ, अस्पताल के वाले से, अस्पताल के वाले जी, सिविल अस्पताल के बेनज़ीर अस्पताल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। की हालत ठीक नहीं है, पानी नहीं है, लैट्रिन सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे तो इतनी गंदगी है कि हमें शर्म आ जाती है। और जो फौजी निज़ाम है वहाँ अस्पतालों में चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन जो सिविल हुकूमत है, ये जो सियासतदान है, इनको मरना चाहिए। फौजी जर्नलों के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। उनकी अस्पतालें देखो और ये इनकी आवाम की अस्पतालें देखो कि वहाँ पे क्या जलालत हो रही है लोगों के। मुश्किल क्या कि मुश्किल से मुश्किल तर है, बाथरूम में पानी नहीं है, गंदगी है, ऊपर से बंदे बैठ रहे हैं, मरीज किधर जाएं? जी, जैसा कि ये हॉस्पिटल के हवाले से भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रोज़मर्रा की अशिया है वो भी बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद वो तो महंगी है लेकिन सहूलियात भी नहीं है। आप जी, आप क्या कहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि महंगाई बहुत है। बिल कितना है आपका? बिल सर मेरे 23,000 बिल आया। कितने बंदे? 3 कमरे हैं, 23,000 बिल है। और मैं कमाने वालों किधर से बिल देंगे हम? क्या इतना परेशान है, बस मजदूरी करते हैं। गुजारा क्या रहा है? गुजारा बहुत मुश्किल की बात है, बस मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इन हालात में क्या बस क्या कह सकते हैं, मुश्किल से बुरा हो, बहुत मुश्किल, बदतर है। ये तो हालात हैं बस। आप क्या कहते हैं? और भाई मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है। 8,500 बिजली का बिल आया जिसमें 4,000 रुपये टैक्स है। अब यहाँ पे करोड़ों रुपए का ये ताजर कारोबार करते हैं, इनके बिल आप उठा के देख लें, ये कितना टैक्स दे रहे हैं और ये गरीब बंदे से कितना टैक्स ले रहे हैं। रिक्शा चलाने वाला 4,000 रुपये टैक्स दे रहा है, दुकानदार क्या टैक्स दे रहे हैं भाई? तो वो तो बिल में बराबर टैक्स है। कोई टैक्स बराबर नहीं है भाई, ये सिर्फ गरीबों की छतरोल है बस। हालांकि नून लीग की हुकूमत जब भी आती थी बेहतर होता था, लेकिन इस दफा इन्होंने गरीब मकाऊ पॉलिसी पे अमल किया हुआ है। 14 रुपये पेट्रोल सस्ता करके 20 रुपये दोबारा महंगा करने की क्या तुक बनती है भाई? IMF से आपको रिलीफ भी मिल गया, सऊदीया ने भी दे दिया, UAE ने भी आपको कर्जा दे दिया, फिर आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं IMF कहता है बिजली महंगी, IMF कहता है गरीबों के ऊपर बोझ डालो। IMF तो ये नहीं कहता, IMF तो कहता है ये जितने भी अमीर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो चोर हैं, सबसे बड़े डाकू हैं, जितने भी सरमायादार लोग हैं, इनसे पैसा वसूल करो, इनसे टैक्स लो। लेकिन ये उन पे नहीं लगाते, क्यों? इनको पता है दुकानदारों से टैक्स कहेंगे या हड़ताल करेंगे जो फिर मान जाएंगे। गरीब बंदा हड़ताल नहीं कर सकता, इसको पता है गरीब बंदे ने कमाना है, सुबह शाम को अपने बच्चों को जाके खिलाएगा। अगर हम हड़ताल करेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे भाई? ये मुल्क को तो लिहाजा हम ये जा रहे हैं। असल चीज ये है कि IMF का जो एजेंडा है वो ये है कि किसी तरह से हमारे इस आवाम का और हमारे जो इदारे हैं उनके दरमियान तसादम हो और हम लोग एक दूसरे के बाहम दस्तो गिरबा हों। हम लोगों के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया है कि कोई भी गरीब जो बिजली का बिल एक दिन 1 रुपया है, अगले दिन 10 रुपये है, उसके बाद 50 रुपये है, अब 52 रुपये एक यूनिट का बिल है। आप देखें कि 100 यूनिट जलाओ तो 1500 बिल आता है, 200 यूनिट जलाओ तो 3,000 रुपये बिल आता है, और 200 से 1 यूनिट कर दो तो आपका 6,000 रुपये बिल आता है। सिर्फ 2 यूनिट जलाने से आवाम के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है कि 3,000 रुपये का इतना बड़ा लोड पड़ रहा है। गैस में उन्होंने इतने बढ़ा दिए, 50% इजाफा कर दिया। जिसका 200 रुपये बिल आता था उसका कम अज कम 2,000 रुपये बिल आ रहा है। ये 50% किस तरह से होता है मुझे तो नहीं समझ में आ रही। IMF का जो बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं सर जोड़ कर, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी साइंस पर अमल कर रहे हैं। उन लोगों ने अवाम का और ये हुक्मरानों को एक दूसरे से बदजन कर दिया है। अवाम किसी दिन भी इस शिद्दत से निकलेंगे कि ये फिर सब कुछ भूल जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और आप ये देखेंगे कि जिस वक्त ये बड़े ऐवानों को लड़ाएंगी ये अवाम, तो फिर ये इनके तख्त गिराए जाएंगे, तो फिर ये इस अवाम की झोलियों के पैरों के तले आएंगे और फिर ये लोग कहेंगे कि यार हम लोगों ने गलत किया। नहीं, ये इलेक्शन जो होंगे, ये जो इलेक्शन होंगे, मैं बता रहा हूँ, ये जो इलेक्शन होंगे इसमें आपको सबको मैं बता रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप एक बंदे को कहते हैं कि यार ये
मुल्क दुश्मन है। अगर मुल्क दुश्मन है तो आपकी कैसी पॉलिसीज़ हैं? जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं उन्होंने कौन सी आवाज़ उठाई? 5500 लड़कियों के साथ जो ज्यादती हुई है भावलपुर यूनिवर्सिटी में, उनमें से किसी एक ने भी आज तक कोई बात की है? किसी ने एहतजाज किया है? फिर कहते हैं जी कि हमारी मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। कौन सी सालमियत है जब हमारी बच्चियाँ जो पढ़ने के लिए जाती हैं कि ना कोई और काम करवाने के लिए जाती हैं? आप उनकी वीडियोस बना लेते हैं, आप उनके साथ नाजायज़ काम करते हैं। और ये सिर्फ एक इदारे की अभी एक चीज़ खुली है। अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अगर इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में जाएंगे, हम चीफ कमिश्नर ऑफिस में चले जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि यार यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। ये तो सारे के सारे करप्ट लोगों को नवाज रहे हैं और जो गरीब है उसको और नीचे गाड़ते जा रहे हैं, जमीन के अंदर गाड़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब आला अस्सलाम वालेकुम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी 50 साल उम्र है और यकीन करें बिलों के हवाले से क्या कह रहे हैं? बिलों के बारे में मैं तो यहाँ पे एक कमरे में रहता हूँ। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पता बिल कितने इसके वो तो घर ही आते होंगे लोगों से नहीं पूछते जी, लोग काम का पूछते। काम का नौबत ये है कि बेरोजगारी बहुत है। मैंने आगे भी मीडिया से बात की है तो उन्होंने कहा आगे जी क्या मसला होना चाहिए। मैं क्या मसला ये होना चाहिए कि अपने खर्चे कम करें, इंडस्ट्रियाँ लगाएं, बेरोजगारी जो खत्म हो हमारे मुल्क में। ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं, देख कर आते हैं, क्या करते हैं? सऊदी अरब ने रमजान शरीफ में 100 मन खजूर भेजी, किधर गई है वो? कि पाकिस्तान के अवाम को ये रमजान वाले दिन ये सबको यानी कि अदा की जाए। और मैं कहता हूँ यकीन करें हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है जितनी देर तक अवाम सड़कों पे नहीं आएगी। अवाम निकलेगी इसका अवाम को रहने नहीं दिया, उनको नवाला मुंह से छीन लिया। वो अवाम बच्चों का रोजगार पूरा करेंगे या सड़कों पे आएंगे? जी सर, आप तय जैसे ये बात कर रहे हैं, आप की इसम पार्टी की हुकूमत है तो क्या समझते हैं? क्या मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे एक भाई ने बात की कि ताजर टैक्स नहीं देते। इस वक्त जो ताजरों का हाल हुआ पड़ा है वो आप सोच भी नहीं सकते। ताजर इतने परेशान हैं कि बिल्कुल कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल भी नहीं है और दुकानदार जो हैं वो उनके किराए और बिल बिजलियों के वो भी नहीं पूरे हो रहे। तो ताजर भी इस वक्त सख्त मुश्किल में है और कोई तबका भी जो यहाँ पे है बिल्कुल वो कोई भी मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। मैं अपनी हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम आवाम के बारे में सोचना चाहिए था। वो अगर आए हैं उन्होंने ये दावे किए, दोबारा लोग कहते हैं हम इन्हें वोट नहीं देंगे। बिल्कुल क्या समझते हैं? वोट बैंक खत्म हो रहा है? बिल्कुल वोट बैंक खत्म हो रहा है, चूँकि जिस तरह से ये महंगाई की जा रही है और सिर्फ इमरान खान को पड़ेगा, चोरों को वोट नहीं पड़ेंगे। जिस तरह से ये महंगाई इन्होंने की है तो बिल्कुल इनका वोट बैंक कम हो रहा है। तो ये हुकूमत जा रही है, मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ। आप तय जी, आप क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आपके साथ ये छोटी सी बात है, छोटा सा सवाल है। बिजली के बिलों के हवाले से पहले मेहरबानी करें कि ये बिल जो है ना कम करें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये इस हुकूमत को मैं बहुत लैक करती हूँ माशाल्लाह। नून लीग को मैं बहुत ज़्यादा लैक करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिलो जान से मैं इन्हें लैक करती हूँ। ये मेरी पसंदीदा हुकूमत है, ये बात नहीं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, सॉरी, मैं इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन बस इतनी मेहरबानी कर दें कि ये बस महंगाई थोड़ी सी कम कर दें कि गरीबों के लिए ज़रा सा वो किचन चलाना जो आसान हो जाए। बस इतनी मेरी ये मेहरबानी, ये मेरी बात अगर सुनते हैं, महंगाई थोड़ी सी कम कर दें, बस ये मेरी हालात ज़रा बेहतर कर लें। ये माशाल्लाह हुकूमत बहुत अच्छी है। मैं बहुत लाइक करती इस वजह से। पसंद किस वजह से? ये बस ये मेरे हीरो हैं, नवाज शरीफ साहब तो मेरे हीरो हैं। आपके हीरो हैं? बिल्कुल मेरे हीरो हैं जी, बिल्कुल। चले ठीक है, शुक्रिया। आप तय जी, आप भी ताजर बिलादरी से जी। मैं इधर आ जाए, आप आज इधर। मैं ये कहूँगा कि मैं कारोबारी आदमी में खुद, और जिस तरह की महंगाई है तो हम लोग भी परेशान हो गए, जो अपना कारोबार करते हैं वो भी परेशान हो गए। आप ये देखें कि 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, आज तक जो ये रातों रात ये हुक्मरान तबका, जो भी पार्टी के हुक्मरान है, ये हुक्मरान तबका अपने लिए तो बिल पास करते हैं, रोज़ अमेंडमेंट करते हैं बिल, उसमें
असम्बली में जाकर, लेकिन आज तक इन्होंने अवाम के लिए कोई ऐसा बिल नहीं पास किया। बंदा इस वक्त परेशान है सब हुक्मरानों से, ये सब आजमा चुके हैं, सबको आजमाया जा चुका है, लेकिन आज तक इन्होंने अवाम के लिए कोई बिल नहीं पास किया। 75 साल से हम ये सुन रहे हैं कि मुल्क ये मुश्किलात में मुश्किल दौर गुजर रहा है। ये मुश्किल दौर जो है ये इन हुक्मरानों की तरफ से ही आता है। साल से मुश्किल है, ये इनकी मुश्किल खत्म ही नहीं होती, क्योंकि ये मुश्किल किसी आम आदमी या इस आम किसी ने अवाम ने नहीं पैदा की। ये मुश्किलात इनकी अपनी पैदा की हुई मुश्किलात है, इनकी तरफ से मुश्किलात है। ये हमेशा मुश्किलात भी इनकी तरफ से पैदा की हुई है। अवाम का इसमें क्या कसूर? मसरूई मुश्किलात है। अवाम तो सफर कर रही है, अवाम मुश्किलात का सफर कर रही है, इसलिए कि जब भी कोई चीज आती है वो अवाम पे डाल देते हैं कि जी अवाम इसका कभी बिलों में डाल देंगे टैक्स की सूरत में, कभी कोई किस अवाम को निचोड़ा जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ रावलपिंडी की अवाम मौजूद थी, अवाम आगाह कर रही थी कि इस समय महंगाई के क्या हालात हैं, अवाम की ज़बानी आपको बताएं। अपने मेज़बान खाली भट्टी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।